هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا اور البتہ ہم نے دی عطا کی موسیٰ علیہ السلام کو 9 آیات نشانیاں، اور البتہ تحقیق ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 نشانیاں دی بینات واضح۔ فاسأل تو پوچھ لیجئے بنی اسرائیل سے، اس جب جاءہم آیا ان کے پاس، فقال تو اسے کہا فرعون نے، انی بے شک میں لأظنک البتہ میں گمان کرتا ہوں تجھے، یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام، مسحورا سحر زدہ۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 کھلی نشانیاں دیں۔ اب بنی اسرائیل سے پوچھ لیجئے کہ جب وہ ان لوگوں کے پاس گئے تو فرعون نے ان سے کیا کہا تھا کہ اے موسیٰ تمہارے بارے میں میرا کیا خیال ہے کہ کسی نے تم پر جادو کر دیا مجھے۔ اب ایک صحیح حدیث میں ان 9 نشانیوں کی تفسیر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بیان فرمائی ہے کہ یہ 9 احکامات یہ تھے: نمبر 1 شرک نہ کریں، نمبر 2 چوری نہ کرنا، نمبر 3 زنا نہیں کرنا، نمبر 4 کسی کو ناحق قتل نہیں کرنا، نمبر 5 کسی پہ جھوٹا الزام لگا کر اسے قتل یا سزا کے لیے پیش نہیں کرنا، اور نمبر 6 جادو نہیں کرنا، نمبر 7 سود نہیں کھانا، نمبر 8 پاک دامن عورتوں پر بہتان نہیں لگانا، اور نمبر 9 جہاد میں پیٹھ پھیر کر نہیں بھاگنا۔ اور یہ ابو داؤد اور نسائی اور ابن ماجہ کی حدیث سے روایت ہے۔ تو یہ کھلی نشانیاں جن کے پوچھنے کے بارے میں کہا گیا تھا کہ ان سے پوچھ لیجئے کہ وہ کون سی کھلی نشانیاں تھیں جو کہ موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے۔ تو فرعون نے کہا کہ مجھے لگتا ہے آپ پہ کسی نے جادو کر دیا، تو وہ یہ 9 نشانیاں تھیں۔ قال اس نے کہا لقد البتہ علمت جانتے ہو تم ما انزل نہیں انزل اتارا ہؤلاء انہیں الا مگر رب السماواتی رب نے آسمانوں کے، والارض اور زمین کے، بصائر واضح نشانیاں بنا کر، وانی اور بے شک میں لأظنک البتہ گمان کرتا ہوں تجھے، یا فرعون اے فرعون، مثبورا ہلاک کیا ہوا۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تمہیں خوب معلوم ہے کہ یہ ساری نشانیاں کسی اور نے نہیں، آسمان اور زمین کے پروردگار نے بصیرت پیدا کرنے کے لیے، ان چیزوں سے نصیحت حاصل کرنے کے لیے نازل کی ہیں۔ اور اے فرعون تمہارے بارے میں میرا گمان یہ ہے کہ تمہاری بربادی آنے والی ہے۔ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ یا فرعون مثبورا، اور تمہارے بارے میں میرا یہ گمان ہے کہ تمہاری بربادی آنے والی ہے۔ فَأَرَادَ پس جب ارادہ کیا ان یستفزہم کہ وہ اکھاڑ پھینکے انہیں، من الارض زمین سے، فاغرقناہم تو غرق کر دیا ہم نے انہیں، ومن معہ اور جو اس کے ساتھ تھے، جمیعا سب کے سب۔ پھر فرعون نے یہ ارادہ کیا کہ ان سب بنی اسرائیل کو اس زمین سے اکھاڑ پھینکے، ان سب کو ختم کر دے، ان کے ساتھ لڑائی کرے، ان کو یہاں سے اکھاڑ پھینکے، ان کو ختم کر دے۔ لیکن ہم نے اسے اور جتنے لوگ ان کے ساتھ تھے ان سب کو غرق کر دیا۔ جو مٹانے والے تھے، اسلام کا نام مٹانے والے تھے، جو کہ موسیٰ علیہ السلام کے فالوورز کا نام مٹانے والے تھے، ہم نے وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا فَأَغْرَقْنَاهُمْ وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا، اور جو نام مٹانے والے تھے ان سب کو غرق کر دیا گیا، اور جو مٹنے والے تھے وہ مٹے نہیں بلکہ باطل مٹ گیا اور حق کا بول بالا ہوا۔ وَقُلْنَا اور ہم نے کہا
मिन बादिही, इसके बाद लिबनी इसराइल, बनी इसराइल को स्कुनू रहो, बसो अर्ज़ा ज़मीन में, फ़ाइज़ा फिर जब आ जाए वअदुल आखिरती, वादा आखिरत का, जिना ले आएंगे हम, बिकुम हम तुम्हें लफीफा इकट्ठा करके, फिर हम तुम्हें इकट्ठा करके ले आएंगे। इसके बाद बनी इसराइल से कहा गया कि तुम जमीन में बसो, रहो, सुकूनत इख्तियार करो, फिर जब आखिरत का वादा पूरा होने का वक्त आएगा तो हम सबको जमा करके हाजिर कर देंगे। और ये वादी तिया के बारे में बात की जा रही है कि वादी तिया में जमा होने के बारे में कहा गया था कि वहां पे आप रहें, वहां पे वादी तिया में फिर जो है इनके लिए खाने भी पेश किए जा रहे थे, मन्नो सलवा उतारा जा रहा था। वो सब जो चीजें सूरह बकरा में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। वबिल हक़्क़ि अंज़लनाहु, और हक के साथ नाजिल किया हमने, वबिल हक़्क़ि, और साथ ही हक के नज़ला, वो उतरा, वमा, और नहीं अरसलना का भेजा हमने आपको, इल्ला मगर, बशर रसूला, खुशखबरी देने वाला और डराने वाला। और हमने कुरान को हक के साथ नाजिल किया है और हक के साथ ये उतरा है, और हमने कुरान को हक के साथ नाजिल किया और हक के साथ ये उतरा है, और हक ही है। और ए पैगंबर, हमने तुम्हें किसी और काम के लिए नहीं बल्कि सिर्फ इसलिए भेजा है कि आप फरमाबरदारों को खुशखबरी सुना दीजिए, जो फॉलोवर्स हैं, जो सही से दीन पर अमल पैरा हो रहे हैं, आप इनको खुशखबरी सुना दीजिए। व नज़ीरा, और नाफरमानों को खबरदार कर दीजिए, उन्हें बता दीजिए अगर अल्लाह और उसके रसूल के रास्ते को छोड़ देंगे तो फिर उनके साथ कैसा सलूक किया जाएगा, कैसा उनके साथ बिहेव होगा। और कुरान को हमने नाजिल कर दिए, कुरान पे अमल कर लेंगे तो कामयाब होंगे, क्योंकि ये हक ही हक है। और फरमाया जा रहा है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि आपको भेजा गया है कि आप जो आपकी बात मानने वाले हैं, अताअत करने वाले हैं, उनको खुशखबरी सुना दीजिए, और जो नाफरमानी करने वाले हैं उनको बता दीजिए कि आपके डरने के लिए भी एक पॉइंट मौजूद है, आपके डरने के लिए भी एक स्पेस मौजूद है, एक जगह मौजूद है। उस जगह का नाम क्या है? वो जगह जहन्नम है। वक़ुरआनन फ़रक़नाहु लितक़रअहु, और कुरान फरकना अलग अलग नाजिल किया हमने, लितक़रअहु, ताकि आप पढ़ें इसे, अलन्नास, लोगों पर, अला मुक़्सिन, ठहर ठहर कर, वनज़्ज़लनाहु, और नाजिल किया हमने इसे, तंजीला, थोड़ा थोड़ा करके। और कुरान को अलग अलग करके हमने नाजिल किया है ताकि आप इसको पढ़ें लोगों पर, अला मुक़्सिन, ठहर ठहर कर, वनज़्ज़लनाहु, और नाजिल किया हमने इसे, तंजीला, थोड़ा थोड़ा करके। हमने कुरान के जुदा जुदा हिस्से बना दिए ताकि तुम इसे ठहर ठहर कर लोगों के सामने पढ़ो, और हमने इसे थोड़ा थोड़ा करके उतारा है ताकि ये दिलों के अंदर उतरने वाली किताब, क्योंकि ये दिलों के अंदर उतरने वाली किताब है ताकि आपके दिलों में उतर। कुरान के अल्लाह ताला ने टॉपिक्स बना दिए, कुरान के टॉपिक्स इस तरह से बना दिए गए हैं कि कुरान एक मोजज़ा है, इसमें हर चीज के टॉपिक्स रख दिए गए हैं। कुरान मजीद मजीद की अजमत बयान कर दी गई है और उसकी तासीर बयान कर दी गई है कि ये अपने पढ़ने वालों के लिए शिफात करेगा, अपने पढ़ने वालों के लिए कामयाबियां लेके आएगा। इसमें रहमत भी है, वो नुनज़्ज़िलु मिनल कुरानि मा हुवा शिफाअ व रहमतुल लिल मुमिनीन, इसमें मोमिनीन के लिए रहमत भी है और इसमें मोमिनीन के लिए शिफा भी है। अभी जो लास्ट लेक्चर में हमने आयत पढ़ी वह भी मैंने अभी आप लोगों के साथ शेयर की। कुल आमिनू बिही, कह दीजिए कि ईमान लाइए आप, बिही इस पर, औला तुमिनू, ना तुम अगर ईमान लाए, इन्नल लदीना, बेशक वो लोग जो इल्मा ऊतुल इल्मा, दिए गए इल्म, मिन क़ब्लिही, इससे पहले, जिन लोगों को आपसे पहले ही इल्म दिया गया, इज़ा युतला, जब वो पढ़ा जाता है, अलैहिम, इन पर, यख़िरूना, वो गिर पड़ते हैं, लिल अस्कानी, कोड़ियों के बल, सुजदा, सजदा करते हुए। काफिरों से कह दीजिए चाहे तुम इस पर ईमान लाओ या ना लाओ, जब ये कुरान उन लोगों के सामने पढ़ा जाता है जिनको इससे पहले इल्म दिया गया था तो वो ठोड़ियों के बल सजदे में गिर जाते हैं। कुरान की तफसीर ऐसी है, जो कुरान को समझते हैं, जो अरबी जुबान को समझते हैं, वो इस पर ईमान लाएं या ना लाएं,
जिनको पहले किताबों का इल्म दिया गया है, जब कुरान इनके सामने पढ़ा जाता है तो वो ठोड़ियों के बल सजदे में गिर जाते हैं। वयक़ूलून, और वो कहते हैं, सुब्हान, पाक है, रब्बिना, हमारा रब, इन काना वअदु रब्बिना लमफ़ऊला, और वो कहते हैं, पाक है हमारा परवरदिगार, बेशक हमारा परवरदिगार का वादा तो पूरा ही होकर रहता है। इससे मुराद वो लोग हैं जिन्हें तौरात और इंजील का इल्म दिया गया, चूंकि इन किताबों में नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी की खबर दी गई थी, इसलिए इनके मुखलिस लोग कुरान करीम को इस फिक्र कहते हैं कि अल्लाह ताला ने आखिर जमाने में जिस किताब के नाजिल करने और इस पैगंबर को भेजने का वादा फरमाया था, वो वादा पूरा हो गया है। वयख़िरून लिलअज़क़ानि यबकून वयज़ीदहुम खुशूआ, और वो रोते हुए कोड़ियों के बल गिर जाते हैं, और ये कुरान उनके दिलों की आजिज़ी को और बढ़ा देता है। और ये सजदा तिलावत की आयत है। ये आयत जब भी अरबी ज़ुबान में पढ़ी जाए सजदा करना वाजिब होता है। अगर लिसनर है, किसी ने इस आयत को सुन लिया है, तो उस पर भी सजदा करना वाजिब होता है। वाजिब क्या होता है? वाजिब का दर्जा फर्ज के करीब-करीब होता है। अलबत्ता सिर्फ तर्जुमा पढ़ने से या दिल में ज़ुबान हिलाए बगैर पढ़ने से सजदा वाजिब नहीं होता। तो अब अगर आप लोगों ने सुन लिया है इस आयत को, अरबिक सारी सुन ली है, तो आप लोगों पे भी सजदा वाजिब होगा, सजदा तिलावत, और मैंने तो करना ही है इंशाअल्लाह। सारे अच्छे नाम और सिफात अल्लाह ताला ही के लिए हैं। नेक्स्ट आयत स्टार्ट हो रही है। कुल कह दीजिए, कुल अल्लाह, कह दीजिए कि पुकारिए अल्लाह ताला को। कोई भी सिचुएशन है, अल्लाह को पुकारिए। अबिदुर रहमान, या पुकारिए रहमान को। अय्यामन, जिस दिन से, जिस नाम से, तदउ, तुम पुकारोगे, आप रहमान के नाम से पुकारोगे या अल्लाह के नाम से पुकारोगे। फालहू, तो उसी के लिए है, अस्माउल हुस्ना, अच्छे अच्छे नाम, उसी के लिए अच्छे अच्छे नाम है। आप अल्लाह के नाम से पुकारिए, आप रहमान के नाम से पुकारिए, आप रहीम के नाम से पुकारिए। फलहुल अस्माउल हुस्ना, तो उसी के लिए अच्छे अच्छे नाम है। वला तजहर, और आप ना बुलंद कीजिए, बिसलाती का, नमाज में अपनी आवाज को। वला तुखाफित, और ना आप आवाज को पस्त कीजिए, बिहा, इसे, वब्तगी, और इख्तियार कीजिए, बैन ज़ालिका सबीला, दरमियानी रास्ता इख्तियार कीजिए। और कह दीजिए, चाहे तुम अल्लाह अल्लाह को पुकारो, अल्लाह कह के पुकारो, रहमान को पुकारो, रहमान कह के अल्लाह को पुकारो, जिस नाम से भी पुकारो, अल्लाह को पुकारोगे, एक ही बात है, क्योंकि तमाम बेहतरीन नाम उसी के हैं। और तुम अपनी नमाज ना बहुत ऊंची आवाज से पढ़ो और ना ही बहुत पस्त आवाज से, बल्कि इन दोनों के दरमियान एतदाल का रास्ता इख्तियार करो। अब इसमें ये जो नमाज ऊंची आवाज में पढ़ने की बात हो रही है, इस आयत का पस मंजर ये है कि अरब के मुशरिकीन अल्लाह ताला के नाम रहमान को नहीं मानते थे। अब यहाँ पे जो नामों की बात हो रही है, कुलिदुल्लाह अबिदुर रहमान, इस आयत का ये पस मंजर है कि अल्लाह ताला के रहमान होने को नहीं मानते थे। चनाचे जब मुसलमान या अल्लाह या रहमान कहकर दुआ करते तो वो मजाक उड़ाया करते, फिर कहते कि एक तरफ तो तुम कहते हो कि अल्लाह एक है, दूसरी तरफ दो खुदाओं को पुकार रहे हो, एक अल्लाह को और एक रहमान को। इस आयत में इनके बेहुदा एतराज का जवाब देते हुए फरमाया गया है कि अल्लाह और रहमान दोनों अल्लाह ही के नाम है, बल्कि इसके और भी अच्छे अच्छे नाम हैं जिन्हें अस्माए हुस्ना कहा जाता है, और इनमें से किसी भी नाम से इसको आप पुकारेंगे, अल्लाह ताला को आप पुकारेंगे, इससे अकीदा तौहीद पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। वला तजहर बिसलातिका वला तुखाफित बिहा, नमाज जब बुलंद आवाज से तिलावत की जाती नमाज में, तो मुशरिकीन शोर मचाकर मजाक उड़ाते और उसमें खलल डालने की कोशिश किया करते, इसलिए फरमाया गया कि बहुत ऊंची आवाज से तिलावत करने की जरूरत नहीं है, यूं भी मोतदिल आवाज ज्यादा पसंदीदा है। वकुल अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़, और कह दीजिए कि तमाम तर तारीफें अल्लाह ही के लिए हैं। अल्लज़ी, वो जिसने, लम यत्तखिज़, नहीं बनाई, वलदन, कोई औलाद, वलम, और नहीं है, यकुल लहू, इसके लिए, शरीकुन, कोई शरीक, फिल मुल्क, की बादशाहत में, वलम यकुल लहू, और नहीं है कोई इसके लिए, वलियुन, कोई हेल्पर, कोई मददगार, मिनज़्ज़ुल्ली, कमजोरी की वजह से, वकब्बिरहू, और बड़ाई बयान कीजिए, तकबीरा, खूब बड़ाई बयान करना। आप बड़ाई बयान कीजिए, खूब अच्छे तरीके से बड़ाई बयान कीजिए। और कह दीजिए, तमाम तारीफें अल्लाह ही के लिए हैं, जिसका ना कोई बेटा है और जिसकी कोई औलाद नहीं है, ना इसकी सल्तनत में कोई शरीक है,
اور نہ اسے عاجزی سے بچانے کے لیے کوئی حمایتی درکار ہے، اور اس کی ایسی بڑائی بیان کیجیے جیسی بڑائی بیان کرنے کا اسے حق حاصل ہے۔ بہت سے کافروں کا خیال تھا کہ جس ذات کا نہ کوئی بیٹا ہو، نہ اس کی سلطنت میں کوئی شریک ہو، وہ تو بڑی کمزور ذات ہوگی، معاذ اللہ۔ اس آیت نے واضح فرما دیا کہ اولاد اور مددگاروں کی حاجت اسی کو ہوتی ہے جو کمزور ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی قوی ہے، اتنی مضبوط ہے کہ اسے کمزوری دور کرنے کے لیے نہ کسی اولاد کی ضرورت ہے، نہ ہی کسی ہیلپر کی ضرورت ہے، نہ کسی مددگار کی، نہ کسی حاجت کی ضرورت ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سے قرآن کو پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارا شمار اپنے شکر گزار بندوں میں فرما لے، اور اللہ تعالیٰ تمام قرآن کلاس اٹینڈ کرنے والی بچیوں کے لیے دین و دنیا کی بھلائیاں، کامیابیاں اور برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس بیچ کو کمپلیٹ کرنے والی، اس میں پارٹیسپیٹ کرنے والی مینجمنٹ اور طالب علم تمام بچیوں کے لیے خیر و عافیت والا معاملہ فرمائے، دین و دنیا کی بھلائیاں، کامیابیاں اور برکتیں عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے ایسے ہی دین کا کام لیتا رہے، ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے، ہمارا کنیکشن اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ مضبوط رکھے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی سچی محبت عطا فرمائے، اور ہمیں ہدایت کے راستے پہ قائم رکھے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔